Good morning, class 10th. I hope you all are taking good care of your health. Students, in previous video lecture, we have learnt about formation of double bonded covalent compounds and their electron dot structures. Students, in today's video lecture, we will discuss about electron dot structures in case of triple bonded covalent compounds, and we will also discuss about characteristics of covalent bonds and covalent compounds and difference between ionic compounds and covalent compounds. Okay students, so without wasting any time, let's start. Okay students, so students, formation of triple bonded covalent compounds. सबसे पहले हम पढ़ेंगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. नाइट्रोजन मॉलिक्यूल हम जो है बॉन्डिंग इन कार्बन में भी पढ़ चुके हैं. हम इसका आज इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो, नाइट्रोजन हैज एटॉमिक नंबर 7 एंड हैज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन K-L shell 2, 5, indicating that there are presence of 5 electrons in its outermost L shell. ओके स्टूडेंट्स, किस तरीके से आ जाएगा? इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5. ओके स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन एटम, ये भी क्या है आपका? नाइट्रोजन एटम. Okay students, so students, each nitrogen atom needs 3 more electrons to attain the nearest stable gas electronic configuration. Students, as nitrogen atom has only 5 electrons in its valence shell, so to complete the octet it needs 3 more electrons to become stable. So students, two nitrogen atoms combine together by sharing 3 electrons each to form a molecule of nitrogen. So ये दोनों जो है आपस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे? 3. 1 2 3, 1 2 and 3. सो बच्चे, सिंगल बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करती है? सिंगल बॉन्ड जो है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करती है. तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये कितनी बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट कर रही है? 3 ट्रिपल बॉन्ड्स को. ठीक है, ये क्या है आपके? 3 पेयर्स ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो स्टूडेंट्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के बाद इन दोनों ने अपना अपना ऑक्टेट जो है वो क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया. एंड क्या बनाया? पहले ये नाइट्रोजन एटम थे, अब दोनों ने मिलकर क्या बनाया? N2 मॉलिक्यूल, दैट इज नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. कैसे शो करेंगे हम इसको? N ट्रिपल बॉन्ड N एंड 1 लोन पेयर. सो आपस में N और N मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो आपस में क्या बनाते हैं? ट्रिपल बॉन्ड बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स. ओके स्टूडेंट्स, सो इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा इन केस ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. सो स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन एटम हैज 8 electrons in the outermost shell and resembles the electronic configuration of the nearest noble gas. Since each atom in nitrogen molecule has 8 electrons now, पहले इनके पास 5 थे, अब कितने हो गए? 8. So nitrogen molecule is more stable than the 2 combining nitrogen atoms. Okay students, in nitrogen molecule each nitrogen atom has 1 lone pair of electron. Okay students, now let us take and another example. Okay students, now next is acetylene और इथाइन मॉलिक्यूल. जो पहले हमने डबल बॉन्ड में पढ़ा था वो इथीन था, ETHENE. ये इथाइन है, ETHYNE. ये भी हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स आएंगे उनमें डिस्कस करेंगे ये ENE और YNE का क्या डिफरेंस है. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ देखते हैं इथाइन मॉलिक्यूल का. बच्चे, acetylene is a covalent compound in which each carbon atom is attached to a hydrogen atom by a single covalent bond, while carbon atom themselves are attached together by a triple covalent bond. Students, ethylene has molecular
फॉर्मूला C2H2। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं कैसे होती है इनकी फॉर्मेशन। कार्बन इसके पास कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन भी कितने हैं, 2। हाइड्रोजन के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन के पास कितने होते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। ओके स्टूडेंट्स, 2 carbon atoms shares 3 electrons each to form a triple bond themselves, while the remaining electron of each carbon atom is shared with 1 hydrogen atom each to form carbon hydrogen single bond। स्टूडेंट्स, एज यहाँ पे देखो बच्चे, इसके साथ तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, बिकॉज हाइड्रोजन को तो 1 ही चाहिए ना, एक और ही चाहिए सिर्फ। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसके साथ, कार्बन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने जो है स्पेयर है, 1 2 3, तो ये यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3। ऐसे ही इस कार्बन के केस में ये जो है इस हाइड्रोजन के साथ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो एक ही चाहिए, तो इसको भी यहाँ पे कितने शेयर करने पड़ेंगे, 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा 1 2 1 2। तो इस तरीके से जो है इनका स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से। सो स्टूडेंट्स, एसिटिलीन कंटेन्स 2 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कैसे बनेगी ये, देखें यहाँ पे हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगी। सो इट कंटेन्स 2 कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड्स एंड 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में कितनी बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड। ईच कार्बन एटम हैज अटेन्ड एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स बैलेंस शेल। Okay students, and each hydrogen has attained a duplet of electrons in its valence shell. So students, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसके केस में, इथाइन मॉलिक्यूल और एसिटिलीन मॉलिक्यूल। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स ये कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स थे कुछ कंपाउंड्स के केस में। सो अब हमारा जो है फॉर्मेशंस कंप्लीट हो गई, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट कंपाउंड्स, इन डबल बॉन्डेड कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड ऑल्सो इन ट्रिपल बॉन्डेड कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, अब आई होप आपको बॉन्डिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। सो स्टूडेंट्स, देयर आर 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। अभी तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड्स पढ़ ली हैं, आई होप आपको अच्छे से आप जो है इमेजिन कर सकते हो क्या इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। पहली सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं उनकी मेन प्रॉपर्टी क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दैट दे आर फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर। डायरेक्शनल इन नेचर, जो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, डायरेक्शनल इन नेचर। दैट इज, क्या मतलब है इसका, क्यों है डायरेक्शनल इन नेचर, बिकॉज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स लोकलाइज्ड इन अ डेफिनेट स्पेस बिटवीन द 2 एटम्स। जो आपकी शेयर्ड पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के वो लोकलाइज रहते हैं एक डेफिनेट स्पेस के अंदर दोनों एटम्स के बीच में, इसीलिए ये क्या है, डायरेक्शनल इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स, नाउ next topic is characteristics of covalent compounds. Okay students, first characteristics of covalent compounds is physical state। कौन सी स्टेट में जो है ये आपके एग्जिस्ट करते हैं। The covalent compounds are generally gases or liquids but compounds with high molecular masses or solids। मैक्सिमम जो है आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स गैसेज या लिक्विड स्टेट में होते हैं, बट वो कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर मासेस हाई होते हैं वो जनरली कौन सी स्टेट में जो है आपके एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट। फॉर एग्जांपल सॉलिड में जैसे आपका यूरिया, ग्लूकोज, नेप्थलीन आ गया। लिक्विड्स में जैसे वाटर, इथेनॉल, बेंजीन, इनके स्ट्रक्चर्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। एंड गैसेज में क्या क्या आ गया, मीथेन का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, क्लोरीन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के स्ट्रक्चर्स हमने कर लिए हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक
is physical state. Okay students, next characteristic is melting and boiling point. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट तो आपको अच्छे से पता है कि क्या होते हैं, बिकॉज आप 9th में इनको अच्छे से पढ़ चुके हो, इनकी डेफिनेशंस होते क्या है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। स्टूडेंट्स, अब कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वीकर देन दोज इन आयनिक कंपाउंड्स। जो आपके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं कोवेलेंट कंपाउंड के केस में लो हैं, बिकॉज जो उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो आपकी जो है क्या है, वीक हैं एज कंपेयर्ड इन आयनिक कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कोवेलेंट कंपाउंड्स में, जनरली डिसॉल्व रेडली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये ज़्यादातर किस में डिसॉल्व कर जाते हैं आसानी से, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। बट वाटर में जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स लेस सॉल्युबल होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल नेप्थलीन विच इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व्स रेडली इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। हाउएवर सम कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक यूरिया, ग्लूकोज, शुगर एट्सेट्रा ये जो है सॉल्युबल है वाटर में इजिली। सम पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर। कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो जैसे आपका हो गया अमोनिया। बच्चे पोलर क्या होता है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो कैसे बनते हैं, द एटम ऑफ टू एलिमेंट हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। जब ऐसी बॉन्ड बने, कोवेलेंट बॉन्ड उन एटम्स के बीच में बने जिनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो, डिफरेंट हो। मॉलिक्यूल्स इन विच द एटम इज बॉन्डेड बाय अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स। जिनके बीच में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बने उनको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल। सो स्टूडेंट्स, सम पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में। लास्ट वन इज कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होती है, कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आपको कंडक्टिविटी तो अच्छे से पता है क्या होती है। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं वो कंडक्ट नहीं कर सकते इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे कंटेन नाइदर आयंस नॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको अच्छे से ये क्लियर हो गया बॉन्डिंग के केस में कि जो आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स उनमें नहीं होते नेसेसरी फॉर कंडक्शन। आपकी कंडक्शन के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी हैं, सो दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज, अल्कोहल, कार्बन, टेट्राक्लोराइड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो कुछ आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बट हम इतनी ही पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे आपकी एक ये भी आ जाती है नेचर ऑफ रिएक्शन। कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दे गिव मॉलिक्यूलर रिएक्शंस विच आर स्लो। इनकी रिएक्शंस कैसी होती हैं, स्लो मॉलिक्यूलर रिएक्शंस होती हैं इनकी। ओके स्टूडेंट्स, एंड एज मैंने जैसे कोवेलेंट बॉन्ड में आपको बताया कि डायरेक्शनल इन नेचर होता है, तो कोवेलेंट कंपाउंड्स जो बनते हैं वो भी क्या होते हैं, डायरेक्शनल इन नेचर। ओके स्टूडेंट्स, सो these are some of the characteristics of covalent compounds. Now move on to the next topic. So students, हमारा आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स को हम इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोलते हैं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन these both compounds are formed by transfer of electrons. Ionic compounds are formed by transfer of electrons. Single बॉन्ड नेटवर्क एग्जिस्ट। सिर्फ इसके बीच में आयनिक कंपाउंड के बीच में सिंगल बॉन्ड ही एग्जिस्ट करती है। और ये कैसे बनती है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेन जो आपका डिफरेंस है दैट इज जो आयनिक कंपाउंड्स है वो बनते हैं बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। या तो लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, एटम जो है या तो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं या गेन कर देते हैं। बट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शेयरिंग करते हैं, इनके बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है और सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स बनती हैं। सेकेंड इज they are usually crystalline solid, but covalent compounds are usually gases or liquid and only a few of them are solid. ये अभी हम characteristics में पढ़ भी चुके हैं। थर्ड differences generally have high melting and boiling points. covalent compounds का भी हमने पढ़ा कि उनका जो आपका melting boiling point है वो क्या होता है, low होता है। बिकॉज क्यों होता है लो, बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर वीकर देन दोज इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, दैट इज वाई दे कंटेन एंड दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फोर्थ डिफरेंस इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट, बट
कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी पढ़ चुके हैं। लास्ट डिफरेंस इज हाईली पोलर एंड आयोनाइज इन वाटर। हाईली पोलर मतलब कि जल्दी से क्या हो जाता है आपका, पोलर अभी मैंने आपको बताया पोलर क्या होता है, पोलर बॉन्ड किसकी वजह से बनती है, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स किनको बोलते हैं, जिनकी हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। और नॉन पोलर किसको बोलते हैं, सेम एलिमेंट्स या फिर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनके बीच में जो है सेम कंपाउंड्स सेम बॉन्ड बने, जैसे H2O2 N2 ये सब नॉन पोलर जो कंपाउंड्स हैं, HCl H2O ये क्या है, पोलर कंपाउंड्स, ठीक है। सो बच्चे आपके ये जो है हाईली पोलर हैं और आयोनाइज इन वाटर है। पोलर मतलब कि ये मैक्सिमम डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ वाले एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड बनाते हैं, जैसे NaCl आयोनाइज इन वाटर, वाटर में डिसॉल्व होते ही इनके आयंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। बट इन कोवलेंट कंपाउंड्स दे आर यूजुअली नॉन पोलर एंड डू नॉट आयोनाइज इन वाटर, बट फ्यू कंपाउंड्स आर पोलर इन नेचर। कुछ कोवलेंट कंपाउंड्स पोलर होते हैं, जैसे HCl जो है वो पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, H2O पोलर कोवलेंट कंपाउंड है, बट H2O2 N2 ये सब नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स है। सो स्टूडेंट्स ये जो हैं आपके वाटर फ्यू कंपाउंड्स जो है वो पोलर इन नेचर होते हैं और आयोनाइज इन वाटर होते हैं, जैसे HCl जो है वो आयोनाइज अपने आयंस को डिसोशिएट कर देता है वाटर में डिसॉल्व होते ही इन H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस। बट मैक्सिमम जो है इसके नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं और ये जो है आयोनाइज नहीं होता, इसकी आयोनाइजेशन नहीं होती वाटर में। ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर सम ऑफ द डिफरेंस पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन आयनिक कंपाउंड्स एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। आई होप आपको आज के जो टॉपिक्स थे हमारे वीडियो लेक्चर के वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो कीप प्रैक्टिसिंग, आपकी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी प्रैक्टिस करें अगेन एंड अगेन, एंड फिर आपके कोई डाउट होता है तो उसको क्लियर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।